ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरु स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। चूड़ोत्तम सित चंद्र चारु कलिका शश्वत चंचल शिखा भास्वरः लीलादग्ध विलोल कामशलभः श्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जदपारमोहतिमिरा प्राग्भारमुच्चाटयन् चेतसद्मियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः ज्ञानप्रदीपो हरः। Page 57 verse 96। चण्डालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथ किं तापसः किं वा तत्त्वविवेकपेशलमतिः योगीश्वरः कोऽपि किम् इत्युत्पन्नविकल्पजल्पमुखरैः आभाष्यमाणा जनैः न क्रुद्धापति नैव तुष्टमनसा मनसः यान्ति स्वयं योगिनः। चण्डालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथ किं तापसः किं वा तत्त्वविवेकपेशलमतिः योगीश्वरः कोऽपि किम् इत्युत्पन्नविकल्पजल्पमुखरैः आभाष्यमाणा जनैः न क्रुद्धाः पथि नैव तुष्टमनसः यान्ति स्वयं योगिनः यान्ति स्वयं योगिनः। Yesterday we saw that
निर्मानो निरहंकृति शम सुख भोगैक बद्ध निस्पृह. This word was remaining little more. So Baddha means he is committed to. Baddha Spraha, he is committed to. So what he is committed to? What he is committed to? He is committed to the enjoyment. What enjoyment? Enjoyment that is coming from the peace of mind. Shama sukh bhogaik nibaddha. There is a Vishayanand, the Anand of the sense object. More are the medium in any Anand, more external Anand it is. More are the mediums, more external is the Anand, and more it is subject to going away also. More internal is our Anand, lesser are the mediums, and there is the possibility that it can be taken away by anybody or a prarabdha will be lesser. So the joy of, because I had told earlier also that the Anand is not the Vastu Dharma, it is the Atma Dharma. Like I say, this is yellow, this is plant. You cannot say this is happiness. So it is not substantial. It is not an objective thing. Rather than it's the nature of the self. So when the vasanas are less, then the reflection of the self is in the pure mind, and there is a heavy reflection of the self in a quiet mind. So one has two dosh. One fault of mind or defect of mind is impurity, and other is chanchalta, fickleness. So impurity means rag, dvesh, kam, krodh, ahankar, irsha, etc. Fickleness means unable to remain. Like a water is there which is muddy as well as wavy water, chanchal water is there. So there is a possibility water can be only chanchal and still it can be crystal clear. So that will have little more reflection. But the water which is still and it is not having chanchalyam as well as malinta, so that water, the reflection of the sun in that water will be more stable and quiet. तो उसको कंट्रोल का मजा आ गया. वासनाहीनता का जिसको मजा आ जाता है उसके पास फिर दूसरे मजे फीके पड़ जाते हैं. एक होता है वासना पूरी करने का आनंद, और एक है वासना हटा के बिना वासना का जो आनंद होता है. सो जो बिना वासना का आनंद होता है, दैट आनंद विच इज ऑफ द वासना, that involves prarabdha, that involves people, that involves time, space, object, action, health of body. And that which is the anand of the vasna hinta, that is prarabdha nirapeksh, sharir nirapeksh, that is dhan nirapeksh, that is यश अपयश निरपेक्ष. ये वासना की हीनता का आनंद है. हमें नहीं रहने का, डिटैचमेंट का भी एक सुख होता है, और बहुत गहरा सुख होता है. Outer things, because after lot of effort you get something, and that too for a short time, then after that it leaves creating impression.
But when you don't have to put effort anywhere with anybody, with any work or without work, because you are desireless or you have less desire, so the reflection of the self in this desireless mind will be very strong. And therefore seekers work more to remove the attachment or ahankar, etc., or malinta and chanchalta and agyan. After that comes agyan. There are three faults in the mind. Intellectual fault is agyan. जो सुख मिला राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में. तो शम सुख सुखा भोग भोगैक बद्ध स्पृह, उसको मजा आ गया. उसको क्या है, क्या एफर्ट करो, कहाँ जाओ, लोगों को समझाओ, किसी के साथ कभी उनको खुश करवाए, बड़ा बोरिंग का काम है. The work which involves so much of effort, still you hardly get anything out of that. काम इतना किया, भागे दौड़े इतना, और टन गोपाल कुछ हाथ में आया नहीं. शांति, जिस कर्म के बाद शांति ना आए, जिस संबंध के साथ के बाद शांति ना आए, वो कर्म और संबंध ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया था. Then what is the purpose of that? हमें तो बिना किसी से मिले अच्छा लगता है, बिना भोगे अच्छा लगता है. ठीक. So he is already in that state. So one is Vishyanand, second is Shant Manasanand. There is still a bigger Anand, and that is called Brahmanand. शांत मन है, लेकिन पता नहीं कब मन अशांत हो जाए फिर. Although this is much ahead, much higher than the Vishyanand, still you can have a quieter mind. But Brahmanand doesn't depend on mind also. Your mind may be good or bad, still you see that. So Vishyanand is dependent on many factors. Manasanand is dependent on very lesser factor. And Brahmanand is totally independent. Sovat jagat उठे बिताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने. Whether I am sleeping or awake, I have the same peace because I am established in that. तब इसकी तो बात ही छोड़ो, उसको तो एफर्ट भी नहीं है कुछ. Next verse, we are heading towards the end of Vairagya Shatakam. So let us see the next word. Already we have chanted. So it is say Abhashyamana Janaihi. This person, the Jnani who is there, this passionate Jnani who is there, who is the hero of Bhagavad and Bhagavad Gita and Upanishad, who is the charm of whole world. Abhashyamana Janaihi. Some people came close to him and always talked in a threatening manner or accosting something. And how is it that Mukharaihi? Mukharai means some are very talkative, blabbering kind of people, voluble, blabber a lot. Iti utpanna vikalpa jalp. So they are asking, they are talking among themselves, Chandala Kimayam. He is Chandal or what? To this person, is he Chandal? Chandal means who eats dog, etc. Chand Kopi, who is angry. So sometimes जिससे बड़ा चांडाल आदमी हो तो So if you want to abuse somebody, you use this word. I'm not saying you use, I'm not suggesting anything, but I have heard this.
I don't use such word. चंडाल किमयम somebody said, अरे नहीं भाई चंडाल वंडाल नहीं है, ये कोई ब्राह्मण. ब्रजित द्विजाति रथवा. somebody said नहीं द्विजाति नहीं है, देखो यज्ञोपवीत तो है नहीं. शूद्रोथ, ये शूद्र. somebody said अरे शूद्र नहीं है, he is तपस्वी. किम तापसः. somebody said no, not tapasvi. They are talking amongst each other. किम वा तत्व विवेक पेशलमति. He is expert in discrimination of asat asat. He is Yogeshwara. He is mastered. He has mastered yoga, I think is there. Kopi kim, somebody is saying, because you move in the world, everybody will say different things about you. So what is his opinion? How he reacts? न क्रुद्धापति नैव तुष्ट मनसः. बोले third line you left. No, third line I already saw first. Okay. न क्रुद्धापति मन नैव तुष्ट मनसः. Neither is angry, neither is very happy. Yanti swayam yoginah. He goes away. Yanti means he goes away. His yogi walks simply. Understand this just meaning, inner meaning of that. There is something called social or communal introduction of mind. He is a doctor. बोले क्या है? बोले डॉक्टर साहब हैं, ये CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये लॉयर हैं. या ये जो है जब किसी को देखते हैं तो बोलते हैं क्या करते हैं आप. सो ही इज़ डिफाइंड बाय हिज एक्शन. उस कंपनी में काम करते हैं, मिलिट्री में कमांडेंट है. अच्छा हाँ, ये पढ़ाई करते हैं. किस क्लास में बेटा? किस क्लास में? 12th क्लास. अच्छा 12th में. अच्छा अच्छा. कहाँ पढ़ते हो? सेंट जॉर्ज में पढ़ते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. ये कहाँ पे है? ये बेंगलोर में. ओके ओके. तो आप पता लगाना, सोशल इंट्रोडक्शन होता है. ये कौन है? ये इनका नाम है प्रकाश कुमारी. अच्छा. मैरिड है? बोले हाँ मैरिड है. किसकी मैरिड? कहाँ इनकी शादी हुई? बोले इनके हस्बैंड का नाम है प्रकाश कुमार. ओके ओके. अच्छा प्रकाश कुमार है. हाँ प्रकाश कुमार सूरज. इनका नाम है प्रकाश कुमारी चंद्रमा. अच्छा इनकी 2 बच्चे हैं. एक का नाम है तारा. अच्छा तारा नाम है. ओके. एक का नाम है बुध. तो इनके 2 बच्चे. अच्छा अच्छा अच्छा. तो करते क्या है? एक सोशल इंट्रोडक्शन होता है. वन इज कॉल्ड दी सोशल इंट्रोडक्शन. आप काम क्या करते हैं, किसके बेटे हैं, क्या उम्र है, क्या पढ़ाई किया है, या कहाँ रहते हो आप, कहाँ रहते हो, किसकी वाइफ हो, किसके हस्बैंड, एटसेट्रा एटसेट्रा. इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द बॉडी दैट पीपल वांट. क्या जाति है आपकी? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, क्या हो? हाँ कोई अगर होगा तो अंदर से ये भी खोजता रहेगा कि है क्या इसकी जाति. स्कैन करेगा अंदर अंदर. पूछ नहीं सकता. प्रकाश कुमार सूरज से पता नहीं लग रहा है कि जात क्या है इसकी. पूछे कैसे? तो बोलते हैं सरनेम क्या है? व्हाट इज योर सरनेम? बोले सरनेम इनका मिश्रा. ओ मिश्रा जी. अच्छा अच्छा अच्छा. ब्राह्मण है. वो आदमी गेज करता रहता है ऐसे ऐसे. इनका नाम है मिस्टर बिल्लू भाई खरबंडा. अच्छा खरबंडा है, ये पंजाबी है ये. ओके ओके ओके. इनका नाम क्या है? आहूवालिया है. आहूवालिया. आहूवालिया. प्रीति आहूवालिया. आलू वालिया बोल देते हैं. हमने आहू वालिया से ना आलू वालिया है. आलू वालिया ना, आलू वालिया. ऐसे आहू वालिया भी बोलते हैं कहीं कहीं. आहू वालिया, आलू वालिया, जो भी बोलना. सब्जी पे है क्या?
तो ये नाम है, ये एक्सटर्नल परिचय है आपका। एक परिचय आपका अपनी दृष्टि में होता है, बोले हम बड़े हैं, हम छोटे मोटे थोड़े नहीं, हमको छोटा बना दिया। वो मन का परिचय थोड़ा आपकी दृष्टि में होता है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, आई डोंट लीव एनी वर्क इनकम्प्लीट, आई कंप्लीट ऑल द वर्क, और आई एम नॉट गुड, और आई एम वेरी हैप्पी, और हमने बहुत मेहनत किया है टू रीच दिस पोजिशन, आई हैव वर्कड अ लॉट टू यू नो आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। एक आप अपना अंदर से मेंटल परिचय देते हैं, अपने आप को आप देखते हैं किसी दृष्टि से। हम बहुत आलसी आदमी, आई एम वेरी लेजी पर्सन, और आई एम नॉट अ लेजी पर्सन, और आई एम वेरी प्रॉम्प्ट पर्सन। हाँ, ये हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमने अच्छे काम नहीं किए हैं, व्हाट इज देयर। ये दो परिचय में आदमी रहता है ज़्यादातर। So this is nature-based introduction, and other was body-based introduction known by the community. This nature-based person introduction is known by you mainly. आपके मन की सारी बात दुनिया में कोई भी नहीं जानता, सारे काम आपके नहीं जानता, बहुत सी बातें आपने छिपा के रखी। Only God knows and you know. और कोई जानते ही नहीं है, भगवान ही जानते। जो भी कर्म है, जैसा भी अच्छा है बुरा है, जो भी है, जब anybody who lives with you, he starts knowing your nature as well. Now he has two introduction, your bodily introduction as well as your mental introduction to a certain extent. He will start knowing what kind of person he is. Early riser, he is a late riser, he is early bird, late owl, or he is a small eater, or he is a big eater, glutton, or he is having sweet tooth, or he is a soft spoken person, or his nature doesn't have jealousy, or his nature has magnanimity, और his nature is very angry, whatever is। तो थोड़ा सा आप मेंटल इंट्रोडक्शन जानते हो। यहाँ तक तो संसारी हो, और हो सकता है आपकी दृष्टि में जो आपका परिचय हो वो ठीक ना हो। यू मे बी नॉट दैट गुड बट यू थिंक आई एम वेरी गुड, दैट इज पॉसिबल। यू मे बी रॉन्ग बट यू थिंक आई एम राइट, दिस इज पॉसिबल। हमसे गलती नहीं होती, आई डोंट नीड गॉड, यू मे से एनीथिंग लाइक दिस इज अ वर्ल्डलीनेस एरिया। अब आते हैं और परिचय पे। एक होता है ईश्वर की दृष्टि में अपना परिचय क्या है। अंदर अंतर्यामी बैठा है, देयर इज अंतर्यामी सिटिंग इनसाइड, एंड दैट अंतर्यामी इज अ कमेंटेटर। हर बात में टिप्पणी होगी उनकी। द कमेंटेटर कमेंट्स इन द क्रिकेट मैच, अच्छी बॉल थी, गेंद की लाइन में, बल्ला पैड एक लाइन में गया, गेंद को पुश किया और ये कैच उठ गया। उसी प्रकार से दिस इज इनर कमेंटेटर। अंते स्थित्वा यमयति, इंटरनली ही इज गवर्निंग। तुमने अच्छा नहीं बोला, ऐसे नहीं बात करना चाहिए था, यू आर अ लेट राइजर, तुम आलस कर गए, या तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक ईश्वर की दृष्टि से दिस इज मच मोर इंटरनल। एनीथिंग इज हाउ मच इंटरनल इट इज, दैट मच कैन गिव यू मोर sorrow and joy. And this is how God sees me. And this is why a person is guilty. And higher you evolve, that means you are more aware of your Ishwar's comment about your action and not your own personal comments, not about social comment. And this is where your Karma Yoga sadhana starts. Bhagavan says that whatever you do for me. How do I know that God is happy? By knowing our own inner self.
मज़ा नहीं आया इस काम करने में। अच्छा, भगवान को अर्पित नहीं हुआ था ये काम। ये नहीं कि हम कुछ भी करें और बोल दें हमने अर्पित कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। बोले हम ड्रिंक करें अर्पित कर दिए भगवान को, ऐसा नहीं होता। अर्पित मतलब होता है उनकी खुशी के लिए आपने किया है। इट्स नॉट अ फिजिकल अर्पण, इट्स मोर ऑफरिंग ऑफ द इमोशंस। व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग अ सीकर, you are more sensitive to that inner conscience, what you call. बोले मज़ा नहीं आया आज, होत न परितोष जी की। भरत जी says, I'm not happy, I'm not fulfilled. हाँ, तो एक ये जो अंतर्यामी है, ये जो inner God है, when you start satisfying this inner God, you become a devotee. बोले हमें ये काम करके हमें शांति मिलती है। इस काम को करने से हमारा मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता, हम नहीं करते इस काम को। आई फील आई एम ए स्प्लिट पर्सनैलिटी बिकॉज आई एम लिसनिंग समथिंग एल्स इज राइट बट आई हैव टू फॉलो समथिंग एल्स। आई कुडंट से नो टू इट। एंड सीकर इज लेस बॉदर्ड। संसारी इज वेरी मच कॉन्शियस हाउ पीपल सी मी। When you become seeker, he is more conscious how God is seeing me today, how Guru or God is seeing me. उसको लोग जो ही बोले फर्क नहीं पड़ता या फर्क कम पड़ता है। It doesn't bother too much. लोग तो पागल हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, that is not an issue. लेकिन भगवान जो बोलते हैं, जब हमारे अंदर में हमें बहुत डीपर सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय सुपर सेटिस्फैक्शन, सुपरफिशियल सेटिस्फैक्शन। आई वॉन्ट अ डीपर सेटिस्फैक्शन। तब फिर आदमी बदल जाता है। बोले हम जब कर लिए अच्छा लगा, मन तो नहीं लगा, लेकिन जब पूरा हो गया, एटलीस्ट टुडेज होल साधना इज कंप्लीटेड। भले जब में मन नहीं लगा, एटलीस्ट भगवान के पास बैठे थोड़ी देर, जैसे तैसे समय बीत गया। When you start aiming inside, through outside action, through outside relative, you become a devotee of the God. ठीक है। थर्ड इंट्रोडक्शन। People don't know exactly what will satisfy you. It is very personal thing. People will not know which jap satisfies you. People will not know what puja will satisfy you. People will not know whose satsang satisfies me. वो हम ही को पता है। सबका सत्संग भी हमको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। या which action satisfies me. Waking up at what time I feel happy and fulfilled. Sleeping at what time I feel fulfilled. Reading what I feel fulfilled. It's very personal. Okay, nobody can know other than Guru. Nobody can find out exactly what is going in my mind. And when you start aiming this particular santosh, then you start surrendering to God. Making that antaryami happy is called surrendering. You keep on changing your intentions. You keep on changing your attitude. ठीक है ना? This is because हम उनकी दृष्टि में कैसे हैं। जैसे एक पत्नी को पति की दृष्टि को, सब लोग जैसा बोले पत्नी को उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पति की दृष्टि में हम अच्छे होने चाहिए। बगल वाले, और क्या नाम था, भटनागर साहब, तो वो अच्छे नहीं समझते, नेवर माइंड। हमारे जो पति हैं वो अच्छा समझे। ठीक है ना? सो दिस इज द साधना तो तभी होती है
when you are listening and you are talking to your someone very inner in you. More you listen, listening to that antaryami is called dhyan, and talking to that is called prayer. आप निवेदन करते हो और आप उनकी सुनते हो, खूब सुनते हो, आप उनकी खूब सुनते हो, खूब हम मौन होके सुनते हैं. When you have reverential attitude towards somebody in front of whom you don't contradict, you just become quiet. Even if you are not clear, you listen more. Even if he is saying something which I don't accept, still I listen. I feel some angle it may be right. I am not right. बस यहीं पे आदमी का मन जो है गुरुमुखी हो जाता है, ईश्वर मुखी हो जाता है. फिर उसको he doesn't bother he doesn't want status from the society. He doesn't want that people will show me. Therefore, sannyasis have hardly any outer dress to impress somebody, outer qualification, outer kind of परिचय. उसका बाह्य परिचय नहीं होता सन्यासी का कि इनका आश्रम इतना बड़ा है, ये इतने डिसाइपल हैं, ये इतनी किताब लिखी, ये सब परिचय नहीं हो उसका. दिस इज ऑल वेरी एक्सटर्नल इंट्रोडक्शन विच डजंट सेटिस्फाई, बिकॉज उसकी दृष्टि में उसका परिचय वो नहीं है. उसकी दृष्टि में वो परिचय नहीं है कि हमारा आश्रम बड़ा है, और अगर है तो वो साधु नहीं है, वो सीकर नहीं. ये संसारी की दृष्टि है कि हमारा आश्रम छोटा है या बड़ा है, डिसाइपल है या नहीं है, कार है कि नहीं है, या हमारे पास पैसा है कि नहीं है. ये सब चीज़ें जिसको सुख दुख देती हैं तो संसारी है. संसारी को बाहर का ही परिचय चाहिए होता है. वर्ल्डली पर्सन इज आफ्टर एक्सटर्नल रिकॉग्निशन एंड एक्सटर्नल परिचय. सीकर इज आफ्टर इंटरनल रिकॉग्निशन. उसको अंदर से भगवान का परिचय चाहिए, भगवान से अपना प्रेम चाहिए. आप कुछ भी बोलो, आप हमारे साथ रहो. दिस इज द थर्ड स्टेज. ठीक है ना, थर्ड स्टेज पे आ गए. एंड दिस इज वेरी वेरी, इट नीड्स अ सटल माइंड टू अंडरस्टैंड दैट. अंदर की आवाज, if 4 people are talking and 3 are talking a lot, one is very decent. So he will not talk if 3 are talking a lot. He will keep quiet. If 3 becomes silent, then only that 4th person will start talking. So any wise person will not talk when foolish people are talking a lot. So our foolishness of our vasana ahankar, because they blabber a lot, therefore our inner God is not that much talking as we want. Therefore Arjun had to keep quiet in the 2nd chapter for Bhagwan to start talking. Tushnim babuva. He kept quiet. And after Tushnim babuva, tamuva charishikeshah प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. है ना, भगवान तब बोलना शुरू किए, उसके पहले नहीं बोल लेते. शिष्य भावी मतलब होता है जिसके सामने हम चुप हो जाते हैं, हम मन खाली हो जाता है. इत्युक्त्वा गुडाकेशेन भारत नयोत्सिति गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. सो भगवान तब बोले, गुरु मतलब जिसके सामने कुछ सुनने की इच्छा होती है. यू हैव अ डिजायर टू लिसन. आप अपना पात्र खाली करके आते हो. यू हैव एम्प्टीड योर वेसल.
भक्त मतलब जो भगवान के पास आज्ञा लेने जाता है, आप जो बोलिएगा, व्हाट इज योर डिजायर, व्हाट इज योर पॉइंट, इसी को बोलते हैं कि यू वांट एन इनर परिचय, इनर फुलफिलमेंट। बोले हमें अच्छा नहीं लगेगा ऐसा करके, बोले लोग नहीं जानते, बोले लोग नहीं जानेंगे, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगेगा। आई विल नॉट बी फुलफिल्ड। हमारा मन हमको कचोटेगा, माई माइंड विल प्रिक मी। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे इससे। भले लोग प्रसन्न हो जाए, लेकिन भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। If God is not happy, everything will be as if the whole world goes away from. हमारी सारी दुनिया एक पर ही डिपेंडेंट है। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सोना, सब कुछ एक ही पर है। वही नहीं है तो मेरी दुनिया नहीं है। ठीक है, सब कुछ वही है। अब आते हैं आखिरी परिचय पे। अरे आखिरी नहीं था ये, नहीं, ये आखिरी नहीं था। आखिरी क्या है? आत्मा की दृष्टि से परिचय। आत्मा की दृष्टि से यही ईश्वर, द सेम ईश्वर टेक्स द फॉर्म ऑफ गुरु एंड टीचेस मी दैट यू आर नथिंग बट मी अलोन इन एसेंस। हम और तुम एक ही। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्व जाते तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकिशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः न शोचति अनीशया मुह्यमानः। समाने वृक्ष, तब बोलता है कि हम और तुम तो एक ही हैं, तुम कहाँ भाग रहे हो यहाँ वहाँ। हु इज मी एंड यू, हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो। इन मी देयर इज नो देश काल, इन यू ऑल्सो देयर इज नो देश काल। दिस इज कॉल्ड that he has known himself to be the self of sarvabhutatma bhutatma kurvannapi na lipyate. The self in him is, he is known that I am the self in all. So इसको बोलते हैं आत्मीय परिचय। So first was social communal introduction. Second is my personal emotional introduction. Third is introduction of God, through God, of my godly introduction. And last is Atma and Brahm introduction. हमारी पहचान अपनी दृष्टि में पक्की है। अब हम यही हैं और जगत मिथ्या है। And I know this. And then I go out. Somebody says you are full. Somebody says you are wise. So because I have no value for it, therefore न क्रुद्ध पथि नैव तुष्ट मनसा, neither is angry, neither is very happy because somebody is praising, because that introduction is false also. That body which itself is false, introduction of that body is false. Like in the dream you go and somebody, and you know it is a dream, and somebody praises very nicely you are dressed, or very good you are speaking, or you are a good bhajan singer. As you will smile and you will not react, similarly this person is not reacting to it. न क्रुद्धा पति नैव तुष्ट मनसा, दुष्ट मनसा मत बोलना, तुष्ट मनसः यान्ति स्वयं योगिनः। दुष्ट मनसा नहीं, तुष्ट मनसा। ठीक है, ऐसे अंदर आना चाहिए। एवरी सिचुएशन, इफ यू डोंट हैव आत्मीय परिचय, एटलीस्ट डेवलप ईश्वरीय परिचय। हर बात में उनसे पूछो आप ठीक है। डेवलप दिस सेंसिटिविटी। दोज हु डू रेकी एंड प्राणिक हीलिंग,
रेकी नहीं किया है, सब कुछ कर लिया, कुछ बाकी है कि नहीं? इन द रेकी एंड प्राणी दे सी लाइक दिस, ऐसे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। प्राणी हीलिंग में ऐसे देखते हैं। दे सेंसिटाइज देयर माइंड टू नो हाउ मच इज द प्राण हियर, हाउ मच इज द एनर्जी लेवल हियर. So you have to sensitize your mind to know which karma has not pleased God, which karma has pleased God. उनकी दृष्टि, अपने को एक की दृष्टि से देखने की आदत डालो, अहंकार की दृष्टि से नहीं कि हम कितने सही हैं, और अटैचमेंट की दृष्टि से नहीं कि हम पापा हैं, हम मामा हैं, हम बेटे हैं, हमारा बेटा बहुत खुश रहता है हमसे, हमारी पत्नी बहुत नाराज रहती है, उसकी दृष्टि से नहीं, उसकी दृष्टि से बाद में देख लेना। पहली दृष्टि है ईश्वर दृष्टि से अपने को देखो, तो ईश्वर बता देगा कि हमें खुशी नहीं है तुम्हारी इस बात से, या हमें प्रसन्नता है तुम्हारे इस बात से। एंड दिस इज व्हाट मेक्स अ सेंट अ सेंट। यू नो व्हाई? बताएं, ईश्वर बहुत त्याग मांगता है। ईश्वर को खुश करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको अहंकार पसंद नहीं और हमको अहंकार पसंद है। निर्ममो निरहंकार सम सुख दुख क्षमी। His requirements, standards are very high and our standards are low, therefore we are unhappy because Ishwar itself is not happy with me. His standards are very lofty. बोले तुम अनपेक्षा, तुम अपेक्षा मत करो, हम अपेक्षा करते हैं। इतना प्योर इंटेंशन नहीं होता, उसको लगता नहीं थी इंटेंशन प्योर रखो, एसेट्रा एसेट्रा। बट हियर आत्मदृष्टि इज बीइंग टॉक्ड ऑफ in this 96 verse. I hope it is clear. बड़ी बड़ी बात है ये सब। लोग थोड़ा सा बोल दें, अपना दिमाग दिन खराब हो जाए। कोई बस इतना बोल दे कि तुम पागल हो। पागल बोला आपने को? क्या बोला? जो तुमने सुना वही हमने सुना, जो आपने बोला। हाँ, या आपने जो सुना वही बोले, वही हमने जो बोला, फिर सुनना चाहते हो? पागल पागल, हम पागल हैं, इतना काम कर रहे हैं, पागल हैं हम। ठीक है, जा रहे हैं, बैठिए। एक अनजान आदमी सड़क का चलता हुआ बोल दे, वहां दिन खराब हो जाएगा। कोई इतना बोल दे तुम देखने में सुंदर नहीं हो, ऐसा नॉट गुड लुकिंग। कोई नेचर को लेके बोल दे तुम बहुत जिद्दी आलसी हो, जिद्दी आलसी हो, हैं? चलता रहेगा मन में कट 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 कट। हम लोग बहुत अटैच्ड हैं अपनी गलत दृष्टि से, अहंकार की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, बस ममता की दृष्टि से देखते हैं। फॉरगेट अबाउट दिस आत्मी दृष्टि, इट्स फार अवे, फार अवे। लेकिन गोल यही है, गोल यही है। चलो भाई, नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। पेज, सेम पेज, 97th verse. हिंसा शून्यमरत्नलभ्यमशनं धात्रा मरुत्कल्पितं व्यालानां पशवस्त्रणाङ्कुरभुज तुष्टास्थलैशायिनः संसारार्णवलङ्घनक्षमधियां वृत्तिकृता सानृणां तामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सर्वे समाप्तिं गुणाः। फिर से बोल देते हैं। हिंसा शून्यमयत्नरत्लभ्यमशनं धात्रा मरुत्कल्पितं व्यालानां पशवस्त्रणाङ्कुरभुजः तुष्टास्थलीशायिनः संसारार्णवलङ्घनक्षमधियां वृत्तिकृता सानृणां तामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं
सर्वे समाप्तिम गुणाः. Now he is saying there is one serpent. Serpents are there, snakes are there. स्नेक दिखा था ना उस दिन. स्नेक क्या होंगे, क्या नहीं दिखे. हाँ, वहाँ जाओ, पानी के पास कोई न स्नेक मिल सकता है. So, you know this snake, the poison in the snake, you know how it is made? नहीं पता. वो हवा से जहर खींच लेते हैं, हवा से ही अपना काम चला लेते हैं. So, they get their food. Ashanam marutkalpitam. They get their food through the air. Sometimes they may not do hinsa also. Himsa shunyam ayatna labhyam ashanam. They are not putting effort. Effort नहीं है. Effort नहीं है. धात्रा मरुत्कल्पितम व्याला नाम. ऐसा नहीं कि बहुत एफर्ट कर रहे हैं, आ गया उनके पास. भगवान ने सबका दाना पानी बना के रखा है. तो जहाँ भी रहो जानवर का भी खाना आ जाता है. काफ़ी मोटे होते हैं कहीं तो. सब मॉस्किटोज आर देयर, उनका भी खून बना के रखा है. इसको काटो, ये कंजूस है, इसका खून निकाल लो. और दे सक सो मच ऑफ ब्लड दे कांट फ्लाई ऑल्सो. एकदम मोटे मोटे हो जाते हैं मच्छर, उड़ भी नहीं पाते. व्याला नाम पशवः. यहाँ तो नहीं है मच्छर, यहाँ है. अच्छा अच्छा, इतना जंगल में मच्छर तो होगा, क्या फायदा जंगल में. पशवः तृणांकुर भुज तुष्टाः. Some animals are there. They are lying down, eating sprouts and eating grass. स्थली शायना, lying on the floor and the earth. ऐसे खा रहे हैं ऐसे. ऐसे रोड पे भी ऐसे रहने से, बीच सड़क पे गाय बैठी. और बार बार तुम हॉर्न बजाओ तो ऐसे करेंगे, मतलब उधर से चले जाओ. ऐसे देखेंगे बड़ी बड़ी आँख से, ऐसे करके ऐसे करेंगे, मतलब टर्न ले लो वहाँ से, हम नहीं उठेंगे. घुटने में दिक्कत होती है ना. काऊ आसन है. काऊ आसन इसको बोलते हैं. स्थली शयना. क्यों मेहनत करो, है ना. सो हियर भर्तृहरि जी सिंह संसारार्णव लंघन क्षमधियाम वृत्तिकृता सानृणाम. मजा आ गया. बोलते हैं, देखो एक बात ध्यान देना. वेयर द एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन विल डिफाइन योर एरिया ऑफ एक्शन. इफ यू आर आइडेंटिफाइड टू योर पर्टिकुलर two people, I will work for two people. If I am identified to a family, I will work for the family people. And in the family people, some are not identified, so they won't work for the other people. ऐसे भी लोग होते हैं उसी फैमिली में. एक आध होते हैं जो काम नहीं करते. You are identified to the body, you will work for the body. AOI will remind your AOA. And area of action will define your area of effort, amount of effort.
आई एम आइडेंटिफाइड सपोजिंग टू दिस होल प्लेस ट्रीटमेंट एरिया. अब जो डॉक्टर हैं दे विल बी आइडेंटिफाइड विद द होल ऑल द रूम्स. तो हमारी दृष्टि में तो एक रूम दिखता है कि इसका गीजर नहीं ऑन है, मैं ऑन था, चिंता मत करो, या इसका वो काम नहीं कर रहा है, इसकी बेड हटा के वहाँ रख दो, उसका सोफा यहाँ ले आओ, वो चेयर वहाँ बाहर के अंदर ले आओ, जिस पे कषाय रखते हो अंदर ले आओ चेयर, जिससे रख ना पाए वो. हम लोग की इतनी दृष्टि है. The one who is identified with the whole treatment area, he will identify to each room. So if in our ashram there is a rule, don't take chairs and outside, disturb मत करो चेयर और टेबल को और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रूम को. अगर हम हो तो बिल्कुल अलाउ ना करें ये सब. अगर स्पेशल केसेस में कि चेंज कर दो उसको, इसको चेंज कर दो, सब ऐसे बिगाड़ देंगे, छोड़ छाड़ के चले जाएंगे. लिखा भी है कि प्लीज़ पुट ऑफ द लाइट, लिखा है लगा. पावर सेव्ड इज पावर प्रोड्यूस्ड, सब लिखा है जगह 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 जगह, हर जगह उन्होंने छोड़ा नहीं है. तो उनकी दृष्टि में सारा कुछ है. दे आर वर्किंग, देयर एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज द होल प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट. जो जिसकी एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, that will become area of action, that will be area of effort. One family person is there, area of identification with wife, husband, maybe mother, father, I don't know, maybe children, he will do for them. बोले आज मेरी बर्थडे, बेटे का बर्थडे, I can't come today, आज सत्संग में नहीं आएंगे, बेटे का बर्थडे. तो बाद में 8 बजे के बाद नहीं आ सकते, सॉरी, हम 7 बजे सब आ जाएंगे, आई हैव टू बी देयर. अच्छा, हाँ, टुडे इज़ अ बिग डे. बिग डे व्हाट बर्थडे? फुल स्टाइल इज देयर. उसका क्या बर्थडे मनाना? हाँ, नथिंग. क्या कहा आपने? कुछ नहीं. तो लगा कि बिल्ले के बेटे का बर्थडे है, ग्रैंडसन का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे ग्रैंडसन का. दादाजी ऊपर चढ़ के गुब्बारा लगा रहे हैं, स्टूल पे चढ़ के पंखे के ऊपर गुब्बारा लगा रहे हैं. स्टूल सरक गया, गिर गए. बर्थडे में बोन ब्रेक हो गई. और चढ़ो ऊपर, अब खूब गुब्बारा बन जाओगे. अब आश्रम के लिए कुछ नहीं करेंगे इन लोग. हम बोले आइए जरा साहब, जन्माष्टमी है, जरा वहाँ नहीं करेंगे, आइडेंटिफिकेशन नहीं है वहाँ. हम गुरु के लिए काम कर देंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे वही काम, क्योंकि माई एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट. एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एरिया ऑफ एक्शन, एरिया ऑफ एफर्ट, and therefore area of sorrow. Enjoy. This shlok tells very interesting thing. You know, when you identify with the world, that is a very false things. Why? Because they don't belong to you. बस इतनी बात जान लेना man. The people, the place, न तो जीव का है, कोई संबंध है नहीं, सब झूठ है सब. जितनी जल्दी झूठ समझ लोगे उतना ज़्यादा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा पुरुषार्थ बदल जाएगी. एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा वहाँ पे. तो झूठ है, इसमें क्या है, तो छोड़ के चल देगा हमको. झूठ तुमको दुख देगा, गरम नहीं है पानी. रहन दो, अब लेट हो गया, एफर्ट हो रहा है, बोलने में एफर्ट हो रहा है. लीव इट. कोई बात नहीं. सो व्हेन यू डिस्कवर, वापस आओ, व्हेन यू डिस्कवर कि दिस थिंग्स एंड पीपल डोंट बिलोंग टू मी. जैसे दो लट्ठे मिलते हैं, लट्ठे अंडरस्टैंड नहीं, लॉग ऑफ वुड,
Supposing in the river is there, 3-4 logs of wood are there, and they were to the current of the wave, they hit each other, and as if they are going together for few distance, 1 to 5 kilometers. But another wave comes that separates. Similarly, we just meet, लट्ठे, इसी से पट्टे बने हैं, तो ये कई लट्ठे मिल गए, एक पति लट्ठा है, एक पत्नी लट्ठा है, एक बच्चे 2-4 लट्ठे हैं, ये साथ में कुछ रहे 2-4 साल, 10-20 साल, फिर काल का एक वेग आएगा और ये सब लट्ठे अलग अलग हो जाएंगे, फिर न हम तुम्हें जानेंगे न तुम हमको जानोगे. If something was belonging to me, I would have possessed that. I would not allow it to leave. Hello, 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 hello. फिर आप गए. Like when we'll leave this room, जिस दिन रूम छोड़ेंगे सब सामान इकट्ठा करेंगे सूटकेस में, वॉशरूम का ब्रश, सोप, सबसे बड़ा खाने का बैग उसका उसमें रखा जाएगा, सबसे बड़ा तो वही बैग है. फिर कपड़े का जो धुलने के लिए दिया उसको सब वापस चला गया. सब बांट दो और फिर उसके बाद फिर हम लोग कमरा छोड़ देंगे, कमरा छोड़ देंगे, बाय बाय कर देंगे, कीज दे देंगे रिसेप्शन पे. सिमिलरली ये बॉडी एक कमरा है, जिस समय जाना होगा तो ये सब जो सेंस ऑर्गन है इसको पैकिंग करेगी जीव. अंदर आँख चली गई, कान चला गया, पैर चला गया, आवाज़ नहीं, अब बोल नहीं रहे आजकल. हाँ, क्या नाम है, कैसे हैं, ये पैकिंग हो गई, तो चल दिया, कमरा छोड़ दिया ऐसे. जब तक प्रारब्ध है हमारा आपका, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, या जब तक प्रयोजन है साथ हैं. जिस दिन प्रयोजन ख़त्म हो गया, साथ छूटा, और फिर हमारी जर्नी कहीं और, आपकी जर्नी कहीं और. सारे जीव भगवान के हैं, सारे कर्म भगवान के. When you realize this, your area of identification loosens. Spirituality is understanding, appreciation, acknowledgement, retention, reception, more than doing something. When a person realizes this, his area of identification shifts from the worldly people to the God or Guru or the scriptures or mantra और पूजा. लोग बोलते साहब ये जब से बहुत अटैच्ड है. अरे तो ये तो बड़ी चीज़ से अटैच होनी चाहिए. तुम तो पागल हो, तुम बेकार की चीज़ से अटैच हो, बाहर के लकड़ी कंकाल से अटैच्ड हो, लोगों से अटैच्ड हो, कर्म से अटैच्ड हो. तुम अपने को देखो. ये जो शिफ्ट हुआ एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन का, हम भगवान के हैं या हम गुरु के हैं या हम मंत्र के हैं, AOI will not take to AOI. फिर एरिया ऑफ एक्शन बदल गया. एंड नाउ यू फील हम नहीं रहेंगे, मान लो, तो भी लोग तो रहेंगे जो संबंधी हमारे घर वाले हैं. भगवान साथ देंगे, उनका काम चली जाएगा. चलेगा नहीं चलेगा, जब नहीं रहेंगे तो काम चलेगा ही. भगवान को जिसको जो खिलाना है खिलाएगा, जो पिलाना है पिलाएगा. ऐसा बोलते हैं जहां आग लगती है हवा अपने आप आ जाती है. बहुत बड़ी सच्चाई है ये.
जहाँ भूख लगती है खाना अपने आप आ जाएगा, कोई ना कोई दे देगा। भूख रहेगी तो खाना आएगा, भगवान से मांग लेना बस। अहंकारी रहोगे तो खाना नहीं आएगा, समर्पित रहोगे तो खाना आ जाएगा। ठंड लगी तो कोई ना कोई कपड़ा दे ही जाएगा तुमको। आप उसके लिए क्या एफर्ट करना है? जो चीज भगवान की है उस पे एफर्ट क्यों करें? जो हमारा है नहीं उस पे एफर्ट क्यों करें? जो हमारा है, जो हमको छोड़ेगा नहीं, दैट गॉड हु विल नो मी इन द नेक्स्ट बर्थ, हु विल गिव मी साधना इन द नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो। यहाँ वाले तो छोड़ के चले जाएंगे, सब यहाँ वाले मस्त हो जाएंगे, बट हु विल नॉट लीव मी, हु हैज टू गिव मी थॉट, हु हैज टू गिव मी जप, हु हैज टू गिव मी श्रद्धा, हु हैज टू गिव मी टीचर। when वही हमारा प्रयोजन सिद्ध कर सकता है, so why not change the area of identification and change the area of action। जो चीज़ हमारी है नहीं उस पर हम क्यों इतना एक्शन करें, कर्म करें, हम क्यों उसके लेके बादर करें? सपोजिंग यू हैव अ डॉग, हाँ डॉग हो गया, जब तक डॉग है तब तक खूब ट्रेन किया, खूब साथ रहे, हाँ देखा क्या खाया क्या पिया, बीमार है। द मोमेंट इट गोज टू द ओनर तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डॉग किसी के पास होगा, जब बैल बिक गया तो नहीं पूछता कि बैल कैसा है हमारा वाला, अब जब जया गया हो गया। जब भगवान इतना कुछ देख सकता है, सूरज चंद्रमा, तो क्यों नहीं एक हमारा घर नहीं देख सकता था? हमारे बेटों को देख लेगा, भाई भतीजों को देख लेगा, हमारा शरीर देख लेगा। The amount of effort that I am putting in this direction, amount of thought, effort, amount of involvement, why not put the same amount of effort in serving God, Guru, Jap, Puja? क्यों हम अपना समय लगाएं? हम नहीं चाहिए, वो चीज़ तो अपने आप ही मिल जाएगी। क्यों हम अपना दिमाग लगाएं? हमें तो अपने आप मिल जाएगी। I will get it anyway। खाना मिल ही जाएगा, स्पेसिफिक नहीं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कपड़ा मिल ही जाएगा। When this conviction changes in a person, and lot is there to do inside, I have to purify my mind, I have to chant name, हमें पूजा करना है, जप करना है, भगवान को बहुत प्रसन्न करना है। This is my main agenda। हम क्यों अपना समय यहाँ वहाँ लगाएंगे? Why should I squander away my time in this direction? This is an internal transformation goals। I don't bother कौन क्या कहता है, किसी को हमारे मन की क्या मालूम है? ये तो पागल हैं लोग, शराब पिए रहते हैं मोह की, परिवार की शराब किसी को चढ़ी है, किसी को बेटी बेटी की शराब चढ़ी है, किसी को अहंकार की शराब चढ़ी है, किसी को यश की शराब चढ़ी है, किसी को कर्म की शराब चढ़ी है। शराब मतलब शराब मतलब पता है? थ्रू विच यू सी समथिंग एल्स। चढ़ गई जिसको बोलते हैं। पीना इज नॉट इक्वल टू चढ़ना। ड्रिंकिंग इज समथिंग, ड्रंक इज समथिंग। तो चढ़ गई है उस समय। चढ़ गई मतलब ही सीइंग समथिंग एल्स व्हाट इज नॉट देयर, एंड व्हाट इज देयर ही इज नॉट सीइंग। जो है वो नहीं देख रहा है, जो नहीं है वो देख रहा है। हाँ ना तुम देखो, जानते नहीं हमको क्या है। हाँ हम लोग वैसे चढ़े हुए अंदर। मोह मदिरा पिबंती, मोह मदिरा पिबंती। Why not put the same effort? क्यों ना हम अपना दिमाग लगाएं? सच इतना कुछ पढ़ने के लिए है। So much Gita I can learn, so much meditation I can do, so much puja I can do, so much of prayer I can do, so much of study I can do with the teacher. Why should I waste my time in the useless pursuits which can be taken care by somebody else? Because my time is limited and my project is quite big, which cannot be done. One after another day is passing,
Night is passing. Evenings and mornings are passing very fast. But my vasana is not going away. My ahankar is not going away. My learning is very slow. I don't get opportunity. I'm involved in 10 areas. When you discover this, and where your area of identification now is joy of God, joy of Guru, pleasing the Antaryami, or purifying the mind, or listening to the Vedant, or meditating, every whole perspective changes. क्या हमने जब घर छोड़ दिया तो क्या हमारे मम्मी पापा को किसी ने देखा नहीं था क्या? कोई ना कोई देखता ही था. ऐसा तो नहीं कोई नहीं देखता था. Somebody was there. कोई ना कोई देखा ही. और ऐसा है क्या इनके बेटे सन्यासी नहीं होते सब घर को देखते हैं क्या? पता लगा ना, या तो नौकरी करने चले जाएंगे, घर में बैठ के झगड़ा करेंगे. ये तो नहीं ना कि घर में बैठ के सब सेवा करते हैं. क्यों भाई? अब आते हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. वाई गिव एग्जांपल ऑफ सर्वे स्नेक और द काऊ और दिस एलिफेंट्स हु आर लाइंग डाउन. जंगल में पड़े हुए हैं, खा पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं. और जिस दिन भगवान को नहीं देना है आपको मार डालेगा, खत्म कर देगा. उसकी दुनिया है, वो चलाना जानता है. आप क्यों किसी चीज को लेके इतने ऑब्सेस्ड में हो? ऐसे ही हो जाए, ना हो, जो हमें बोलना था बोल दिया. उसके बाद आपकी मर्जी है. आप तो हमारे हैं नहीं, ना हम आपके हैं. हम आपके हैं कौन? उसको लगा चॉकलेट दिए ही नहीं. इस समय लोग नहीं मिलते. सब लोग बड़ी आशा के साथ आते हैं कि हम इनको कड़वाहट दें या हमको कुछ मीठा दें. अब अगली बार आओगे तो वो मांगे चीनी रख देना, चीनी. संसार अर्णव. देखो क्या लिखा है, थर्ड लाइन देखो. इसीलिए श्रीधर स्वामी की हमने कितने बार स्टोरी बताई थी, जिनके बच्चे मन बताया था ना, एक चिड़िया का बच्चा गिर गया था. ही ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल चाइल्ड. की पत्नी की डेथ हो गई थी. ही वांटेड टू टेक संन्यास. वन बेबी बर्ड हैड फॉलन फ्रॉम द रूफ टॉप. ही सेड उसको खाना कौन खिलाएगा? चिड़िया का बच्चा. One moth entered the mouth automatically. Then he realized that who can feed this baby bird? Chick can feed my child. और वो चले गए संन्यास लेने. तो हमको लगता है कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा, ये हमारा है. सब बेवकूफ़ी की बात. तो कहाँ लगाए हम? और ये सब जो काम करना है गृहस्थ का, कर लो आप 50-55 साल तक. उसके बाद आप इमोशनली फ्री हो जाओ, नहीं तो आपको हर जगह ट्रैप किया जाएगा. पकड़ा उसी को जाता है जिसमें ममता और अहंकार होती है. इसमें अहंकार और ममता नहीं होती, वो पकड़ में नहीं आएगा आपके, वो ट्रैप नहीं होगा. मछली को खाने को चाहिए, इसीलिए मछली पकड़ी जाती है. अगर मछली को खाने को नहीं चाहिए, मछली फास्ट करती है अगर उस दिन, तो मछली नेट में नहीं पकड़ में आती. मतलब मंडे मछली फास्ट करती, या एकादशी का व्रत करती, या नहीं खाती, अंदर ही नीचे खाती. मान लो ऊपर का खाना नहीं खाती. इनसाइड ऑल्सो इज लॉट ऑफ फूड फॉर द फिश, बट इट इज अटैच्ड टू दैट फूड एंड देयरफॉर दैट इज कॉट. तो जो अटैच्ड होता है, इसमें अहंकार होता है, उसको बहुत से कर्म पकड़ लेते हैं. ही इज कॉट बाय लॉट ऑफ एक्शंस. He is caught by a lot of so-called duties. It's not duty. Your duty is different. आपकी ड्यूटी वो नहीं है, वो तो आपका अटैचमेंट है.
जैसे मिठाई पे चांदी का बरक लगा देते हैं, वैसे आपने अटैचमेंट पे चांदी की बरक की ड्यूटी का बरक लगा दिया है। चमचमाती है वो, चमचम कर रहा है पेड़ा, पता ना बरक, हाँ बरक बोलते हैं उसको, ऐसे करके लगा देते हैं। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो और कुछ नहीं। फूलिंग योरसेल्फ। वाकई कब तक ड्यूटी करोगे? होगी ड्यूटी आपकी। बच्चों के पीछे भाग रहे हो क्योंकि आपका अटैचमेंट है, ग्रैंडसन के पीछे भाग रहे हो, आपका अटैचमेंट है। 60 साल में जॉब कर रहे हो क्योंकि अटैचमेंट है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, नीड कम कर दो, 2 रोटी खाओ, नहीं ज़रूरत सैलेड खाओ। फल खा लो, चलो केला खा लो, अकेलापन लगता है तुमको। भगवान ने आपके लिए बना के रखा था। तो क्या लिखा है? संसारार्णव लंघन क्षमधियाम। You have the capacity to cross this ocean of transmigration. आपके अंदर कैपेसिटी है कि आपका रिबर्थ न हो। आपको भगवान ने बुद्धि दिया है कि आप अलग कर लो, डिस्क्रिमिनेट कर लो। You have a capacity to discern, to know this is sorrow, this is joy, this is hit, this is unhit. To know that you have vasana, you will be reborn. To know you have fruit of action, you will be reborn. I don't know what you will be reborn as. One bird in hand is more than 2 in the bush. You don't know where is there. आज का दिन आपके पास है, ये जन्म है, इसको यूज करो। आगे का पता नहीं उस समय कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। संसारार्णव लंघन क्षमधियाम वृत्ति कृता सानणाम। वृत्ति मीन्स livelihood. He has already created your livelihood. What you need, he has created that. भगवान ने किया हुआ है। कृता, सा वृत्ति कृता, धात्रा, इसको धात्रा बोला था ना फर्स्ट लाइन में। धात्रा, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन। कहाँ आता है गीता में धाता? कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। आदित्यवर्णम, थर्ड लाइन। और क्या करें हम दिन भर बैठ के? तामन्वेषयताम प्रयान्ति सततम। नाउ यू डिस्कवर द लॉर्ड्स ग्लोरी। 3 ही तो काम करना है, एट द मोस्ट 4। अंतःकरण शुद्ध करो, विरक्त हो जाओ। सेकेंड, भगवान में खूब भक्ति प्राप्त करो, फिर गुरु के पास आत्मज्ञान। अंतःकरण शुद्धि, विरक्ति, भक्ति और मुक्ति, बस नथिंग। और कुछ काम ही नहीं है। और तुमने 4 घर बना लिया, 2 घर बना लिया यहाँ। उनकी शादी में गए, उनके ब्याह में गए, उनके मातम में गए, वेट कम कर रहे हैं ऐसे ऐसे दौड़ दौड़ के। 1 किलो कम हुआ, बहुत खुश हो गए। अरे राख हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा तुम्हारा वेट, चिंता मत करो। बोले ऐसी बात मत करिए, सुबह सुबह बड़ा टाइम लगता है। नहीं, सब कम हो जाएगा, चिंता मत करना। चिंता मत करना, तो एकदम राख हो जाएगा। इलेक्ट्रिकोरियम क्या बोलते हैं, क्रेमेटोरियम में जाना, पेनेटोरियम में नहीं, क्रेमेटोरियम में। प्लेनेटोरियम मत, बहुत शौक है। क्रेमेटोरियम में जाओ, इतना राख हो जाएगा। हरिद्वार में हम लोग विसर्जित कर देंगे। मोटे तगड़े काफ़ी हो, भारी हो। पतले होते हैं, पतले लोग टाइम लेते हैं। दोज आर वेरी थिन, टाइम लगता है उनको जलने में, क्योंकि फैट नहीं है ज़्यादा। हम रहे ना शमशान में, दार है, दिखता था। बड़ा वेट कम कर रहे थे ना, इसी में ज़िंदगी लगा रहे थे। स्प्राउट खा रहे थे, हेल्दी खा रहे थे, पंपकिन सीड और फलाना डिमाका खा रहे थे।
इसी में दिन लगाते, 4 घंटा प्राणायाम कर रहे थे, 2 घंटा योगा कर रहे थे, और जब पूजा करते नहीं हो, सत्संग में आते नहीं हो, ये शरीर भगवान को ना दो, शरीर का काम क्या है? योग प्राणायाम सबका प्रयोजन है कि शरीर ठीक है, जिससे भजन करें। तुम शरीर बना रहे हो, बस बर्तन साफ कर रहे हो, खीर नहीं खाते, शर्म नहीं आती, उसके लिए है सारा कुछ। स्लिम होंगे क्या करोगे? नींबू पानी पी रहे हो लगातार, शिकंजी ले रहे हो, मौत का शिकंजा नहीं देख रहे हो। तामन्वेषयताम प्रयान्ति सततम सर्वे समाप्तिं गुणाः। All the 3 gunas merge in you. You become गुणातीत। तुम गुणातीत। शिकंजी में ऐसे करेगी। समझ रहे हो? हाँ, बहुत सहमत दो योगा होगा में, ऐसे ऐसे करने में। इसको बोले और खींचिए, और ऊपर उठा के रखिए, और लिफ्ट करते रहिए। गिर गया नहीं, गिर नहीं गया, आपने गिरा दिया। होल्ड करिए ऊपर, चलिए उठाइए पैर। किसका? अपना। मोटे लोग हैं, हाँ, तुरंत गिर जाते हैं। जब तक होल्ड नहीं करें उसका स्ट्रेंथ ही नहीं आता योगा का, आराम से नीचे गिरेंगे और फिर देर तक ऐसे रहेंगे। इसे बहुत मेहनत कर लिया, रेस्ट कर रहे हैं वहां, 2 मिनट योगा करे, 10 मिनट रेस्ट। फिर वो कहेगा उठिए, ऐसे करिए। हाँ, क्या? इसको हाथ ऊपर उठाइए, इसको और ऊपर उठाइए। नहीं उठ रहा है, चलिए उठाइए, पैर ऊपर उठाइए। हाँ, गिरिए मत। इसी में 2 घंटा लग गया। वहां क्लॉक क्लिक कर रही है यमराज की। एक पारायण नहीं किया बंदे ने, रामायण का पारायण कर लेता, सुंदरकांड पढ़ लेता, पाठ कर लेता, पूजा कर लेता, परिक्रमा लगा लेता, ध्यान कर लेता, सत्संग सुन लेता, अखबार पढ़ रहे हैं साहब 2-2 घंटा। भर्तृहरि बोले, हम नहीं बोल रहे, चिंता मत करना। दिन में एक थोड़ी देर के लिए कोई डांटने वाला होना चाहिए, जिससे दिमाग ठीक रहे, प्रमाद चला जाता है। लेट अस रीड दिस। अब ये जो श्लोक हमने पहले भी कभी बोला होगा, वेरी पॉपुलर श्लोक इससे, पेज 958 एंड वर्स नंबर 98। बोले आज पूरा हो जाएगा? नहीं, कल। अरे 6 वाला पहले, वो 6 काम हमें नहीं, 6 वाला मान लो कि पूरा हो गया, गया वो। हाँ, गंगा तीरे हिमगिरी शिलाबद्ध पद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसन विधिना योगनिद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैः यत्र ते निर्विशङ्काः कण्डूयन्ते जरठहरिणाः स्वांगमंगे मदीये। फिर से, गंगा तीरे हिमगिरिशिला बद्ध पद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसन विधिना योगनिद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैः यत्र ते निर्विशङ्काः
कंडूयन्ते जरठ हरिणाः स्वांगमंगे मदीये. This is not no sadhana. He is telling how the man of perfection is harmless to everybody. उसकी अहिंसा वृत्ति कितनी बढ़ गई. अहिंसा, अहिंसा मतलब गांधी जी की अहिंसा नहीं, गलत सत अहिंसा है उनकी. अहिंसा हियर उनको मत लाना हिंसा वाले में, उनकी अहिंसा बिल्कुल गड़बड़ है. ये अहिंसा है मेंटली आई हैव नो सेंस टू हर्ट एनीबडी. सेंस ऑफ वननेस इज एक्सप्रेसिंग एज फीलिंग ऑफ नॉन हर्टिंग एनीबडी मेंटली. अब व्हाट इज दिस पर्सन हियर? गंगा तीरे हिमगिरिशिला. ही इज सिटिंग इन पद्मासन. He said, will that time come to me, when that happy days will come to me, when I am near the Ganges, sitting in this Padmasan. Padmasan पता है ना? हाँ पता है पद्मासन. ऐसे शिव जी जिसमें रहते हैं वो पद्मासन है. So he is near the Ganga ji and near Himalaya, he is near some Shila, and I will lose ब्रह्म ध्यान अभ्यास अभ्यासन विधिना. आई विल बी प्रैक्टिसिंग ब्रह्म ध्यान. देखो क्या आनंद है. जिसने कर्मयोग भक्ति योग सब पार कर लिया, गुरु से पढ़ भी लिया, गुरु ने बोल दिया कि तुम आत्मा हो, चैतन्य हो, देश काल अतीत, उसी में ही इज डेविडलिंग, उसी में वो रम रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है और बीच बीच में समाधि में चला जाता है. कब आएगा वो सुधि सही, वैसा उस अच्छा दिन कब आएगा? देखो गिल का किम तैर भाव्यम मम सुविधि सही सुदिवस सही. दैट ग्रेट डे वेयर देयर इज नो डूअरशिप, नो इंजॉयरशिप, नो एंगर, नो चिंता. एंड एट दैट टाइम डियर्स विल कम. डियर, नॉट माई डियर, डियर DER, हिरण. और ओल्ड जरट हिरणा विशंकिता. They will have no fear from me because I am one with their soul also. Ahimsa pratisthayam tastanidau vairtyaga. If anybody's ahimsa is very developed around him, all the animals also leave their animosity. So they are there. Deers are coming near me. And swangam ange madiye. And they are rubbing their body with my body. They are removing their itching. ऐसा है. कंडूयन्ते जरट जटिना स्वांगम अंगे मदीये. अपने अंग को हमारे अंग के साथ ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, उतने फियरलेस है. सो संन्यास का बहुत बड़ा धर्म है. आई विल नॉट बी अ सोर्स ऑफ फियर फॉर एनीबडी. नाइदर आई विल हैव फियर फ्रॉम एनीबडी, neither I will be a source of fear from anybody, because I am a non-competitor, because I am a non-desirer, because I am a not angry person, because I am not a person who will backbite. So you should have no fear from me. हम तुम एक हैं. जैसे इस हाथ को इस हाथ से डर नहीं लगता, वैसे किसी को हमसे डर नहीं लगेगा. सब लोग हमको अपना मानेंगे, आत्मा की तरह देखेंगे. The deer also are feeling one with me. So when that day of my oneness with everybody will come, this he is saying. More we will see. Tomorrow we will complete it. These 2 verses, बाकी देखा जाएगा. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरु